Welcome back. You're watching India Ahead News. Now, the electoral battle in Uttar Pradesh has shifted to crucial Purvanchal region for the last two phases. Today, phase 6 of the assembly polls is currently underway in 57 constituencies across 10 districts. A total of 676 candidates are in the fray. The voter turnout is 21.79% as of 11 a.m. That's the recordings that we're getting at the moment. In the 2017 elections, last time around, the Bharatiya Janata Party swept the region, winning 46 out of the 57 seats. The BSP emerged the second largest party in the region with 5 seats, and the Samajwadi Party won only 2 seats. This time, the BJP is banking on its double-engine Sarkar, the double-engine government, and the slew of developmental projects that have been launched in the region ahead of the assembly polls. On the other hand, Samajwadi Party is hoping for a repeat of 2012 when the party had won 32 seats. The phase 6 elections are also crucial as it would test the strength of the various caste-based parties which have mainly formed alliances with the Bharatiya Janata Party or the SP in alliance with the Rashtriya Lok Dal, the RLD, whereas the BJP in alliance with the Apna Dal and the Nishad Party. Parties like Apna Dal and Nishad Party have partnered with the BJP, and SP has allied with several smaller parties along with the RLD, like I reiterated earlier. So hail the Bharatiya Samaj Party, which is the SBSP, the Mahan Dal, Apna Dal K, and the Janvadi Party, Socialist. Both the Bharatiya Janata Party and the Samajwadi Party have given several seats to their alliance partners in the Purvanchal region. SC and Muslim communities will also play a huge role in phase 6 elections. Chief Minister Yogi Adityanath's constituency of Gorakhpur Urban also goes to polls in this very phase. Yogi Adityanath, who will be contesting his first assembly polls, will be up against Samajwadi Party's Subhavati Shukla, who is the wife of late BJP leader Upendra Dutt Shukla. Bhim Army Chief Chandrasekhar Azad is also in the fray from Gorakhpur. Other key candidates include UP Congress President Ajay Kumar Lallu from Tamkuhi Raj seat. Swami Prasad Maurya, who was in the BJP and served as a minister, is contesting from Fazil Nagar seat on a SP ticket. Leader of the opposition and senior Samajwadi Party leader Ram Govind Chaudhary is also in the fray from Bansdi seat. UP Minister Surya Pratap Shahi will contest from Pathardev seat. Satish Chandra Dwivedi from Itawa seat, Jai Pratap Singh from Bansi, Sri Ram Chauhan from Khajani seat, and Jai Prakash Nishad from Rudrapur seat. Even as polling is underway, India heads of Nish Vidyarthi spoke to BJP candidate from Deoria, Salabh Tripathi. Let's listen into that conversation. नमस्कार, हमारे साथ देवरिया सदर के उम्मीदवार बीजेपी के तेज तर्रार पत्रकार योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलभ त्रिपाठी मौजूद हैं। सलभ जी, आज मतदान भी हो रहा है देवरिया सदर में, किस तरीके का उत्साह उमंग दिखाई पड़ रहा है आपको? आप जाइए बूथों पर, जनता के बीच में जाइए, जबरदस्त उत्साह है और लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी की जो लहर है उत्तर प्रदेश में करिश्मा करेगी। इस बार 2017 में मोदी जी की लहर चली, लेकिन 2022 में मोदी और योगी जी की कॉम्बो लहर चल रही है। जबरदस्त प्रचंड लहर है और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अच्छा, देवरिया एक ऐसा जिला है जो कभी गन्ना के लिए, चीनी मिलों के लिए जाना जाता था। अब यहाँ बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में लोग देवरिया से आते हैं, कई और जगहों पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान में। आप यहाँ से निकले, पत्रकारिता में गए, ऐसा क्या हुआ अचानक की राजनीति में आने की इच्छा हुई और अब आप उम्मीदवार भी हैं बीजेपी से? पहले लगता था कि केवल सवाल पूछना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है, अब लगता है कि नहीं, सवाल पूछना नहीं, उत्तर तलाशना सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसलिए पत्रकारिता छोड़ के उत्तर देने के क्षेत्र में आए और आप देखिए सवाल पूछ रहे हैं, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ग्राउंड जीरो पे जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, हम सब देखिए खड़े यहाँ पे गांव के लोग हैं, सबके बीच में जाता हूं और जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो सवाल हैं, उनके उत्तर तलाशने का, उनको मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसीलिए पहले मेज के उस पार था, अब मेज के इस पार हूं। अच्छा, एक चीज देखने को मिली इन चुनाव में, अभी कुछ चरणों पहले हमने देखा SP सिंह बघेल के वाहनों पर हमला हुआ, उनको चोट पहुंचाई गई। फिर हमने देखा कि ये कुंडा में भी इसी तरह की स्थिति हुई। फिर हमने देखा फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य ये आरोप लगाने लगे। फिर हमने देखा कि देवरिया में भी इस तरह की कोशिश की गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ हमला किया। तो ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं? देखिए, मैं आप ही से एक सवाल पूछूंगा, हालांकि मैं जानता हूं कि उस सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, आपकी मजबूरी है। इस
उत्तर प्रदेश में जेलों के भीतर जो अपराधी बंद हैं, जो ठूंसे गए हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, अगर उनको वोट देने का मौका मिले, आज वो कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? भाजपा को या समाजवादी पार्टी को? सबको पता है कि जेलों के भीतर जो अपराधी बंद हैं या जो एनकाउंटर में खूंखार अपराधी मारे गए हैं, वो सिर्फ एक पार्टी चाहते हैं, समाजवादी पार्टी। और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ये पूरा चुनाव अपराधी बनाम उत्तर प्रदेश हो चुका है, माफिया बनाम उत्तर प्रदेश हो चुका है। और बुरी तरह ये जो माफिया, अपराधी, गुंडे, दंगाई ये चुनाव हार रहे हैं। जब चुनाव हारते हैं तो कहीं भाजपा काफिले पे हमला करते हैं, कहीं भाजपा नेताओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन को पता नहीं है कि जब जब भाजपा को निशाना बनाया गया, भाजपा और मजबूती से उभर कर सामने आई है, कमल खिला है और उत्तर प्रदेश में फिर कमल खिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हम लोग उनका भाषण सुन रहे थे। उन्होंने मंच से कहा कि ये घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रवादियों का चुनाव है। राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है इन चुनाव? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस प्रदेश में आतंकवादी छोड़े जाते हैं जेलों से अखिलेश यादव की सरकार में, कि जो लोग हमारे धर्मस्थलों पर हमला करते हों, काशी पर हमला करते हों, अयोध्या पर हमला करते हों, ऐसे खूंखार आतंकवादियों को छोड़ा जाएगा तो प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी होगी? योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के साथ खड़ी होगी। अगर अयोध्या को फैजाबाद बनाने वाले अखिलेश यादव के साथ उनको लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, तो हमारे साथ अयोध्या जो मानते हैं, जो लोग जो मानते हैं कि श्री राम जन्मभूमि भगवान राम का जन्म स्थान है, उसको अयोध्या होना चाहिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद है। और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता उन बातों को समझ रही है, जनता राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव कहते हैं सबसे बड़ी पार्टी, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठा। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ऐसे ही घूमती रहे। जितना भाषण दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जितना अखिलेश यादव मंच पर जा रहे हैं, अखिलेश यादव जब मंच पर जाते हैं तो जनता कहती है ये वही मुख्यमंत्री है ना जिसने आतंकवादियों को छोड़ा था, ये वही मुख्यमंत्री है ना जिसने 400 दंगे कराए थे, ये वही मुख्यमंत्री है ना जिसने पूरे परिवार ने मिलकर उत्तर प्रदेश को लूट लिया था, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने अपने पिता की पार्टी छीन ली थी और बूढ़े पिता को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा था। और आज जब चुनाव हार रहे हैं तो मुलायम सिंह को जा जाके करल में घूमना पड़ रहा है कि बेटे को वोट दो। तो अखिलेश यादव जाते रहे जनता के बीच में, समाजवादी पार्टी के नेता जाते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिसने लाल टोपी पहन रखी है समाजवादी पार्टी की, वो सबसे बड़े गुंडे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनका जवाब देगी। एक आखिरी सवाल है, जब आप देवरिया आए थे तब यहाँ भी इसी तरीके से भू माफिया और बड़े बड़े माफिया थे। जो बात योगी अपने भाषणों में कह रहे हैं, बुलडोजर बाबा के रूप में भी उनको कहा जा रहा है, वो मुद्दा यहाँ पर भी था। और यहाँ पर भी माफियाओं ने बहुत सारी जमीनें कब्जा कर रखी थी, बहुत कुछ कर रखा था। अब इन चुनाव में जो माहौल है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन नहीं परेशान है? मुझे एक गांव बता दीजिए जहां समाजवादी पार्टी का कोई छोटा सा नेता रहता हो, पूरा गांव से त्रस्त हो। किसी की जमीन कब्जा करना, किसी का मकान कब्जा करना, किसी महिला के साथ अभद्रता करना, तो मुद्दा तो है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज मुद्दा है। समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज रहा है, आज कौन ब्रांड एम्बेसडर है समाजवादी पार्टी का? मुख्तार अंसारी, सैबुतुल्ला अंसारी। मुख्तार अंसारी जेल में है, सैबुतुल्ला अंसारी बेल पर है। तो ऐसे लोग जो बेल पर और जेल वाले अपराधियों को लेकर घूम के चुनाव लड़ रहा हो, तो उत्तर प्रदेश की जनता तो भयाक्रांत है उनसे। वो कहती है भैया कुछ भी हो जाए, इनसे बचना है और बुलडोजर बाबा को वापस लाना है। और वापस ही नहीं लाना है, 200-250 नया बुलडोजर दिलवाना है, ताकि जो नए कुकुर मुत्ते पैदा हुए हैं उन पर बुलडोजर चलवाना है। देवरिया से जीत के प्रति कितना आश्वस्त? पूरा जनता कह रही, हम नहीं कह रहे। जनता कह रही चुनाव एक तरफा है। पत्रकार साहब भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चुनाव एक तरफा है। जीत हार की बात ही नहीं है, मार्जिन तय होना है कि 60,000 से जीतेंगे कि 1 लाख से जीतेंगे। ये थे सलमणि त्रिपाठी, बेहद आश्वस्त कि देवरिया सदर से बड़ा बहुमत उनको मिलेगा, एक बड़े अंतर से वो यहाँ जीत हासिल करेंगे। 10 मार्च को स्पष्ट होगा कि जनता ने देवरिया के कितना साथ दिया। एक पत्रकार को विधानसभा तक पहुंचाने में देवरिया की जनता कितना आगे बढ़ पाती है, इसके लिए 10 मार्च को इंतजार रहेगा। इंडिया हेड अवनीश विद्यार्थी, देवरिया।